بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈلائن نیوز. ناظرین, بریو ٹارگٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سردار امین خان جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, جس طرح کہ عمران خان صاحب کا ایک وعدہ تھا کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں اس کے ذریعے ایک نئی قیادت اور نیا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے, ابھی تک 2.5 سالوں میں تو جسے کہتے ہیں حکومت صرف اناؤنس کرنے کی حد تک اس پروجیکٹ کو لے کے آگے چل پائی ہے. ابھی تک اس حوالے سے کوئی صحیح طریقے سے ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کر پائی. تو یہاں پہ لیکن ہمارے جو شہر فیصل آباد ہے, ایک بہت بڑا سٹی, پاکستان کا تیسرا بڑا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے, یہاں پر لارڈ میئرشپ کے حوالے سے کافی عرصے سے جو ہے بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ اس حوالے سے بڑا واچ کرتے ہیں کہ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے, سیریس کینڈیڈیٹ, جو اس حد تک آگے ورک کر رہا ہے کہ عوام میں اس کی جو پریزنس ہے یا اپیرنس ہے وہ کافی زیادہ ہو. تو آج اس ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے بیرسٹرعادل رفیع چیمہ, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فیصل آباد میں سیاسی گھرانہ, ایک بہت ہی رینون فیملی سے تعلق ہے. ویلکم کروں گا آپ کو اپنے شو میں. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی بالکل ٹھیک, تھینک یو جی امین صاحب. بیرسٹر صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ بالکل ینگ انرجیٹک, لیکن جو فیصل آباد میں آپ کا جو کام, جو پیشن, یا جس طرح سے آپ سٹائل سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیونکہ ابھی تک اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی اس حوالے سے کہ الیکشنز کب ہوں گے یا حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو یہ جو ایک ویکیوم بنا ہے یا اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ آپ پیش کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں آپ سیاست میں آ کر, یا آپ اپنے آپ کو ایز اے لارڈ میئر کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین امیدوار ہیں؟ اس میں امین صاحب بیسیکلی تو میری فیملی تو پالیٹکس میں پہلے سے ہے. میرے گرینڈ فادر ہی واز فیڈرل منسٹر, اور پھر میرے والد صاحب بھی ہیں 1990 سے پالیٹکس میں. تو اس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو خان صاحب ہیں, ان کا ویژن ہے کہ ہم نے الیکشن ڈائریکٹ کروانا ہے, کیونکہ آج سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں انڈائریکٹ, بلدیاتی جو ہیں, ہمارے چیئرمینز اور وائس چیئرمین الیکٹ ہوتے ہیں, یہ ووٹ دیتے ہیں, اس کی ووٹنگ سے میئر بھی اور ضلع ناظم بھی منتخب ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی تھی, پیسے بھی چلتے تھے, سب کچھ ہی ہوتا تھا. جو سب سے تگڑا امیدوار تھا پیسوں کے لحاظ سے, وہ بندے خریدتا تھا اور اس کی ضلع کونسل میں گورنمنٹ بن جاتی تھی. لیکن خان صاحب نے پہلی دفعہ جو ہم نے 2019 میں پنجاب اسمبلی سے بل ہمارا پاس ہوا ہے, لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے, اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے, اس کے اندر انہوں نے کر دیا ہے کہ جی ہم نے ووٹ لینے ہیں ڈائریکٹ. تو جو ہمارا الیکٹورل کالج اب ہے فیصل آباد کا, اس میں ہمارا راؤنڈ اباؤٹ 46 لاکھ ووٹ ہے فیصل آباد کا. تحصیلیں علیحدہ کر دی ہیں اور ووٹنگ ڈائریکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیئرمین, وائس چیئرمین, جو کونسلر نظام ہے, ہیڈ کونسلر منتخب ہونے ہیں, ان کا الیکشن ہم سے پہلے ہے. یہ 2 اسٹیج الیکشن ہوگا. دوسری اسٹیج پہ الیکشن ہمارا ہے, جو ہم لوگ میئر انٹرسٹیڈ ہیں, جس کو پارٹی نامینیٹ کرے گی. جیسے وی آر ان PTI, اور PTI کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے, بیکاز سنس 2010 وی آر ان PTI. تو میں تو آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرے پاس تو کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں, یا مجھے تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی تھی کہ انڈائریکٹ الیکشنز میں ووٹ خریدوں چیئرمین سے اور پھر میں بنوں. تو میں تو اپنے آپ کو پیش اس لیے کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو کرنا ہے عوام نے. میں کم از کم اپنے آپ کو آئی شوڈ بیکم اے آپشن فرسٹ, پارٹی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. میں آپشن بنوں, کیونکہ ڈائریکٹ ووٹنگ ہے, 48 لاکھ بندہ خریدنا ممکن نہیں ہے. اس میں آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی آئے گا, کریکٹر بھی آئے گا, اس میں آپ کی جو آپ کا مینیفیسٹو ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو فار فیصل آباد, وہ بھی آئے گا. تو میں تو اس لیے اس میں چھلانگ لگائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر آپ کو کوئی ریسورس کا ایز سچ بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ نہیں ہے, تو دین پالیٹکس از دی فرسٹ ڈیوٹی آف اے سٹیزن, بیکاز انہوں نے پالیسی کو شیپ کرنا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس لیے آئے تھے کہ 0 ٹالرنس فار کرپشن تھی, اور ابھی تک ہے. ہمارے اپنے چیف منسٹر کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے, ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ نیب میں پیش ہو رہے ہیں. علیم خان صاحب نیب کے اندر 3 ماہ کی انہوں نے بندش کاٹی ہے, اور ابھی تک چل رہے ہیں سب کے اوپر کیسز. تو ہم نے میں تو اپنے آپ کو فیصل آباد کی عوام کے سامنے پیش کیا ہے, اور اپنی پارٹی کے سامنے. صرف میری ہوپ یہ ہے کہ جو اب ڈائریکٹ ووٹنگ ہے, جس طرح کہ امریکہ میں ہوتا ہے, سینیٹرز ان کے ڈائریکٹ منتخب ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے, پریزیڈینشل سسٹم ہے, ان کا ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. تو ایک عوام کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز سے, بلیک میلنگ سے, تعلقات سے, برادریزم سے ہٹ کے
क्योंकि एक बंदे को आपने वोट देना है और वो जिसको बेहतर समझते हैं उसको इलेक्ट करें। लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 2.5 सालों में सही तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाई, और बहुत सारे जो इनके जो आप इशूज़ ले लें, इनकी इंतज़ामी लिहाज से देख लें, हुकूमती लिहाज से देख लें, बहुत सारे फेलियर्स हैं, और बिज़नेस जो है आपको पता कोविड-19 की सूरत भी चल रही है। तो क्या समझते हैं कि आप क्या ऐसा विजन लेके आ रहे हैं, क्या ऐसी नई चीज़ है, नई ऐसी पॉलिसी है जो कि फैसलाबाद के शहरियों को अट्रैक्ट करेगी, क्या ऐसा प्लान देंगे आप? देखें अमीन साहब, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ बिकॉज मैंने लॉ वहाँ से किया है, फिर मैं बारट लॉ वहाँ से किया, LLM वहाँ से किया। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे साथ जो हमारे क्लास फेलोज थे उनमें से कुछ लेबर पार्टी में थे, कुछ कंजर्वेटिव्स में थे, तो उसके अंदर मुझे बड़ा मौका मिला कि मैंने करीब से देखा कि ये डायरेक्ट वोटिंग जो है ना होती कैसे है और इसमें लोग ज़्यादा चीज़ क्या देखते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे सिर्फ फुकदान है करप्शन फ्री लीडर्स का। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ करप्शन ना करें और आप दयानतदारी से फोकस के साथ आप काम करें तो फैसलाबाद में बहुत काम हो सकता है और होने वाला काम है। आप देखिए हमारा पानी का मसला है, हमारी जो लाइनें बिछी हुई थी अब वो सीवरेज जो है साफ़ पानी का और हमारा गंदे पानी का मिक्स हो गया हुआ है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस की रेशो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा है। तो साफ़ पानी का निज़ाम हम लेके आएंगे, हमारे पास बजट की कमी नहीं है बिकॉज जो है वो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी फैसलाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इधर है। पानी का निज़ाम हम ठीक करेंगे, उसमें रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, एक रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है, वो गवर्नर साहब का एक ब्रेन चाइल्ड है, वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो वी विल एक्सपैंड इट, हम उसको पूरे फैसलाबाद में बिछाएंगे। फिर हमारा पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, अब आप देखें 8 बाज़ारों का हमारा पार्किंग का जो हाल है, और फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बिकॉज मैं खुद एक लॉयर हूँ, वहाँ पे साहिल ने अगर जाना है तो उसकी जान पे बन जाती है, ना वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़े करने की जगह है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी है, ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह है। अब रिसेंटली मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था, गुड़गांव दिल्ली में उन्होंने जो पार्किंग का निज़ाम लेकर आए हैं वो आए हैं कन्वर्टेबल प्लाजास। अब लाहौर हाई कोर्ट में हमारे ये भी एक है, लेकिन फैसलाबाद में वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब जितनी स्केर्सिटी है लैंड की आबादी बढ़ रही है, लैंड कम है, अब वो मुमकिन नहीं है कि आप 3-3, 4-4 मंजिला प्लाजे बना दें, क्योंकि वो लैंड सारी आपकी हो जाती है, बाउंड हो जाती है। अब हमारे पास स्टील के जो है वो पार्किंग प्लाजा चल रहे हैं, उस पर 300-300 गाड़ी, 400-400 गाड़ी, 500-500 गाड़ी की कैपेसिटी होती है, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। वाहिद वही हाल है, उसके अलावा कोई दूसरा हाल नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे एक प्लान था फैसलाबाद के लिए कि जो हमारी वेस्ट है उससे हम अपनी बिजली जनरेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट्स ने भी जो बजट था सारा वो पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल किया और कहाँ नहीं इस्तेमाल किया, लगा कुछ नज़र नहीं आया। और वो हमारा प्लान है कि हम उसको दोबारा रिवाइव करेंगे और हम जो हमारी जो वेस्ट है फैसलाबाद का, हम उससे अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी करेंगे कम से कम फैसलाबाद की। तो ये हमारे मेजर हैं। फिर हमारा हेल्थ का बड़ा इशू है, हेल्थ और एजुकेशन। फैसलाबाद में आप समझ लें कि जो इसकी रेशो इंतहाई कम है। आप हेल्थ के हवाले से ले लें तो हमारी अतायत जो है फैसलाबाद में आम है, हर दूसरे रोज़ आपके सामने ऐसा केस ज़रूर आता है जिसमें किसी भी अताई डॉक्टर ने जो है किसी की ज़िंदगी का जो है बेड़ा गर्क किया होता है। एजुकेशन वहाँ पे भी हमारी रेशो इंतहाई कम है। तो इस सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग्स हैं आपके पास? देखें उसमें पता है क्या है, जो है ना हेल्थ का इशू, जो अताई डॉक्टर है वो एक नेचुरल बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, अगर मेरे आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है ना और मेरे रिसोर्सेज नहीं है तो मैं देखूंगा कि जी मेरी जेब जो इजाज़त दे रही है उसके अंदर कौन सा बंदा मुझे इलाज करेगा, मेरा इलाज करेगा, मैं उसके पास चला जाऊंगा। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। उसके अंदर जो 2 हॉस्पिटल हमारे मेन है, सिविल और लाइड, ये तकरीबन कोई 40 साल पुराने हॉस्पिटल है। जब देखिए वहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं चल रहा ना, वहाँ पे भी आवाम को जिस तरह के ख्याल रखा जाना चाहिए, जिस तरह मसीहा का फर्ज होता है उसके अंदर ये जो पॉलिसीज़ है आपको एज ए लॉर्ड मेयर इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस करना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक कामयाब तरीन उम्मीदवार हैं तो आपको ये जो हेल्थ और एजुकेशन का ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आपको हर सूरत में ठीक करना पड़ेगा। तो इस हवाले से कुछ प्लानिंग या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? मैं वही बता रहा था ना, हमारे जो 2 हॉस्पिटल्स हैं ना जी, इनकी स्टैंडर्ड इसलिए गिरा है क्योंकि हमारी आबादी का लोड बढ़ गया है। हमारे डॉक्टर्स वही हैं, हमारी रूम्स कैपेसिटी वही है, एमरजेंसी कैपेसिटी हमारी वही है। तो जब तक हम फंड इंजेक्ट नहीं करेंगे, हम नए हॉस्पिटल नहीं लेकर आते,
उस वक्त तक हम उसको टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी है 500 मरीज़ और वहाँ पे जा रहा है 10,000 बंदा, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कोलैप्स करना है, वहाँ पे डिले भी आना है, ऑपरेशंस भी गलत होंगे, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हम जो है फैसलाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स के प्लान हम ज़्यादा लेकर आएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक नया बल्दियाती निज़ाम में 5 यूनियन काउंसिल वाला निज़ाम आ रहा है ना, हम कम अज़ कम टारगेट करके पर 5 यूनियन काउंसिल्स हम कोई ना कोई हॉस्पिटल का प्लान लेकर आएंगे। उसके बगैर मुमकिन नहीं है, उसके बगैर ना अताई डॉक्टर ख़त्म होंगे, ना हमारे ये देसी नीम हकीम ख़त्म होंगे। क्योंकि जब ये रिसोर्सेज नहीं है आवाम के पास, हमारी ज़्यादातर आबादी तो लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे है, तो हम सस्ता जो सेहत का निज़ाम है वो इसी तरह मुमकिन है कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे हम तकरीबन कोई 30-30, 40-40 बेड के अस्पताल लेकर आएँ। यूनियन काउंसिल लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे बात है। यूनियन काउंसिल लेवल पे कम से कम 30 से 50 बेड का एक हॉस्पिटल, बहुत ये बड़ी वैलिड बात है आपकी। इससे आगे ये एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या आपके पास प्लानिंग्स हैं? किस तरह से आप हमारा जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है तालीम का, हमारे स्कूल्स देख लें आप, हमारी फैसिलिटीज़ देख लें, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसके लिए क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं, नए आपके पास आइडियाज़ हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? इसके अंदर जी सबसे पहले तो आइडिया ये है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम लोग खुद हैं, हम जब तक अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराएंगे स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होनी, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं अपलिफ्ट होना। तो सबसे पहले तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि जो मेरी असम्बली के अंदर हमारे बंदे बैठे हुए हैं, हमारे अपने घर के भी, और जो हमारी असम्बली के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और उसको बेहतर करने का तरीका है पीपीपी मोड। पीपीपी मोड का मतलब है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जिस तरह लोधरा में जहांगीर तरीन की जो है वो पायलट उसका प्रोजेक्ट है, जेकेटी पायलट प्रोजेक्ट, उसके तहत तकरीबन वो मेरा ख्याल है कोई 60 से 70 स्कूल चला रहा है। हमारे पास फैसलाबाद के अंदर पैसे की कमी कोई नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी है फैसलाबाद, हम लोगों के पास इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पैसा लगाने को तैयार हैं, बट दे वांट एश्योरिटी दैट द मनी विच दे आर स्पेंडिंग, उसमें कोई करप्शन नहीं हो रही। और हर बंदा पैसे देता है, उसको पता हो कि मेरा पैसा जो है सही जगह लग रहा है। अगर उसको ये पता है कि ये पैसा किसी और की जेब में जाना है, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तो हम उसको लेकर आएंगे। जो हमारे पास स्कूल्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को और जो मुखैर हज़रात हैं उनको हम हैंड ओवर करें, वो इसको स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। बिजनेसमैन है वो सपोर्ट करते हैं, इंडिया के अंदर उनके टॉप के बिजनेसमैन स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ उनकी जो आवाम है, हाँ, सिर्फ क्रेडिबिलिटी का इशू है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। पुलिस का निज़ाम हमारे फैसलाबाद में, अब देखिए लॉर्ड ऑर्डर की सूरत हाल जो है अभी तक, हालांकि ये सीपीओ बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल इनको कहा जाता है, लेकिन जो थानों की हद तक जो अवाम के साथ सलूक हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर रिश्वत, 2.5 साल दौर में इमरान खान साहब का जो एक नारा था, जो वादा था कि इंसाफ सबके लिए होगा और हर बंदे की रिस्पेक्ट होगी थाने में, लेकिन अभी तक उसके हवाले से एक रत्ती बराबर भी नहीं। तो क्या आप एज ए लॉर्ड मेयर क्या ये चीज़ें, इसको किस नज़र से देखते हैं कि थानों का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम कम अज़ कम फैसलाबाद के लोगों को जो है इससे रिलीफ मिले, और कम अज़ कम ये जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि आप थाने में जाएंगे तो आप जारी बात है इंसल्ट होकर या बेइज्जत होकर वापस आएंगे, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या प्लानिंग्स है आपके पास? देखिए जी, ये हो सकता है हम उसको लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिस्टम यही रहेगा। हमने एक तो पुलिस का निज़ाम ये हमसे पहले ही हो गया था, गवर्नमेंट से पहले ऑनलाइन हो गया था। वो ये हो गया कि अब अगर कोई बंदा अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो वहाँ पे उसको एक रसीद मिल जाती है, रिसीविंग। पहले वो जो भी कोई ASI SI होता था उसके पास पड़ी रहती थी, वो 10-12 दिन डिले करता था, पैसे लेता था, फिर उसको आगे मूव करता था। अभी सिस्टम वही है, अभी भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक नाम की हद तक आपको एक पर्ची मिल जाती है, आपको एक मैसेज आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कम अज़ कम अदालत में पेश कर सकता है साइल। उसके पास एक एविडेंस होता है कि जी मैंने ये फलाने दिन दरख्वास्त दी थी, मेरा अभी तक कुछ नहीं बना। तो उसके अंदर हम मज़ीद उसको ऑनलाइन सिस्टम को लेकर आएंगे। एक तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कैमराज इंस्टॉल करें पुलिस स्टेशन में, उसका हम एक यूनिट बनाएंगे। फिर जो मेरा ज़ाती ख्याल है उसमें हम मुशावरत भी हमारी चल रही है हमारी टीम के साथ कि हम लोग जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है उसका 80% रेशो है उसकी सक्सेस की, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है। हम लोग फैसलाबाद में और मैं मतलब हर शहर में एक लोकल सिटीज़न पोर्टल होना चाहिए, वो डायरेक्टली अंडर हमारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसकी वॉच में होगा।
और उसके अंदर हम शहरियों को देंगे कि वो वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करें। हम क्योंकि जब फैसलाबाद में एक इलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है तो वो डायरेक्टली उसको वॉच कर रहा होगा, तो इंशाल्लाह उससे हमारी प्रोग्रेस बेहतर होगी। अच्छा, सियासी लिहाज से क्योंकि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है, तो क्या ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो रही हैं? क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स में फैसलाबाद में जो आपकी पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और लोगों में आम तासुर जिस तरह के एक बहुत पहले 2-4 कैंडिडेट्स की हद तक था, लेकिन अब आपके नाम पे फोकस्ड हो रहे हैं लोग, और आपको इस हवाले से जाना जा रहा है फैसलाबाद में कि आप इंतहाई सीरियस जो है कैंडिडेट हैं, जो आपका वर्क जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, फैसलाबाद के शहरियों के नाम क्या पैगाम देंगे कि आपको जो है एज ए उम्मीदवार या एज ए लॉर्ड मेयर कहाँ पे वो रेट कर रहे हैं इस वक्त? आप क्या समझते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं कोई इसलिए फ़ैसला नहीं किया था ये मेयर का कि मैंने कोई इससे रोज़ी कमानी है या कोई मेरा टारगेट पॉलिटिक्स का। मैं तो जब पहले दिन मैंने ये फ़ैसला किया था ना, क्योंकि मैं तो, अगर आप मुझे कहें कि मैं इंडिपेंडेंटली फ़ैसला करता तो मेरे पास तो शायद इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपनी इसमें मैं कैंडिडेट भी बनता या मैं एडवर्टाइजमेंट लोगों को बताते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैंने जब अपने फादर से डिस्कस किया, क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 1-1.5 साल से हमारे कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं वो ग्राउंड में थे, तो उनकी शोहरत भी सबके सामने है। मैं जो समझता था कि यार अभी तक कोई फैसलाबाद की आवाम के पास अगर ऑप्शन ही नहीं है तो वोट फिर किसको देना है? जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उनमें से देना है। तो मैंने वाले साहब को कहा, मैंने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि मैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, मैं अपनी पार्टी के सामने भी एक ऑप्शन बनूं, पार्टी फैसला करेगी फिर, और मैं फैसलाबाद के लोगों के लिए भी ऑप्शन बनूं। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बिल्कुल बराबर की टक्कर दे दी है। इस जो अगर कैंपेन के हवाले से देखा जाए या जो वर्क के हवाले से देखा जाए तो आप बराबर की कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। उसमें जी जब मैंने अपने वाले साहब को कहा ना, उन्होंने कहा कि यार अगर तो तू सियासत करके कोई 4 आने वधाने ने तो फिर ना कर, कि मैं भी ਜਿਹੜਾ ना वो खुश हाँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट, तो कोई मैनू कोई मसला नहीं है पैसों का। तो अगर तो तू समझना है कि भाई वाकई कुछ कर सकते हो और अपनी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके बेहतरी लेके आओगे मैसेज की ज़िंदगी में, जो गरीब लोग हैं, तो फिर इसको करो परसू। तो और उसमें अमीन साहब हमें रिस्पॉन्स जितनी में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो लोग खुद बुला रहे हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन इतना पहले है कि हम उस पेस पे हमारी अभी कैंपेन नहीं है। हम तो अभी सीसी वाइज विजिट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में हमारी तकरीबन कोई 160 से ऊपर की सीसीज हैं जो हमारा सिटी का इलेक्शन है, तो हम सीसी फाइव लोगों के पास जा रहे हैं, हमें लोग खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर कुछ के पास मैं खुद जा रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो एक हदीस है ना कि जी अल्लाह ताला दिलों में बात डालता है, वो वाली बात है। क्योंकि मेरा कोई इस तरह का लंबा चौड़ा सियासी बैकग्राउंड है नहीं है कि मैं जी आया हूँ और आके तो लोगों ने जो है ना वो कहा है जी फलाने को तलकदार, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लोग खुद बुला रहे हैं और ये तो मैं जहाँ भी जाता हूँ हम कोशिश करते हैं कि उनको लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि मैं तो सियासत पॉलिटिक्स कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डिलीवर करने की बेहतरीन कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि बैरिस्टर चीमः जो कि बिल्कुल यंग और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिवोटेड और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पीटीआई के रहनुमा होने के साथ साथ एक सियासी बैकग्राउंड से भी तल्लुक़ रखते हैं और इंतहाई सीरियस कैंडिडेट के तौर पर फैसलाबाद के शहरियों में इस वक्त जाने पहचाने जा रहे हैं। और इनकी जो मीटिंग्स हैं या इनकी जो कॉर्नर मीटिंग्स के साथ साथ जो इनका वर्क है डिजिटल मीडिया पर जिस तरह के होना चाहिए वो उसी तरह से कर रहे हैं। और ये पेस ज़ाहिर बात है, जब तक ये फाइनली इसकी डेट बलदियाती इलेक्शन की अनाउंस नहीं होती उस वक्त तक इनकी पेस जो है वो कहते हैं कि इसको इसी तरह स्लो एंड स्टेडली हम लेकर चलेंगे। और बाकी इन्होंने अपने आप को एज ए ऑप्शन जो है अवाम के सामने भी और अपनी पार्टी के सामने भी रख दिया है और अवाम और पार्टी बेहतर फैसला करेगी कि कौन सा बेहतर कैंडिडेट है फैसलाबाद की लॉर्ड मेयरशिप के लिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।